Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elawat. I hope you are keeping your health well. You're very fine and you're studying well. Yes. Okay, fine. I'm also good. Okay, so today we'll be doing the next topic of chapter 2, that is food preservation. Dear students, so far we have talked about the various, types of microorganisms, the vaccination, then the different types of diseases, yes, the harmful and the useful effects of microorganisms. Now in this particular module, we will be talking about the food preservation. Okay, food preservation. See, we want that the food that we are preparing, that should last for a longer period of time. It should not get spoiled, right? So that is why we are talking about the techniques of food preservation, the ways of food preservation. How can we, how can we prevent the spoilage of food so that we can properly eat it? So very first technique is heating. Okay. See, if we heat a particular object, if we heat particular food product, like milk, okay, so heating जो है, that kills the microorganisms. Heating की वजह से microorganisms की death हो जाती है बेटा. So heating kills the microorganisms and that is why we boil the milk, we boil the water. हम पानी और दूध दोनों को गर्म करते हैं, right? और जो milk industries हैं बेटा, वहां पर जो है milk is preserved by heating it or by giving it an ultra heat treatment which is called as UHT. जो industries हैं वहां दूध को अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको पार्शली स्टेरिलाइज किया जाता है बेटा. दैट मीन्स वी आर हीटिंग द मिल्क एट अ टेम्परेचर ऑफ 130 degrees Celsius for a few seconds and then this milk is packed and it is sent to the market so that it remains fresh for several months. तो ये जो खाना है ये काफी टाइम तक जो है फ्रेश रहता है और फूड जो मिल्क है दैट रिमेन्स फ्रेश फॉर सेवरल मंथ्स एंड वी कैन यूज इट. सो पार्शियल स्टेरिलाइजेशन होती है. So we can go for the heating process. Heating kills the microbes. Okay? Yes. You must have heard a technique which is called as pasteurization. Have you heard it? Have you heard this technique, dear students? Tell me, hurry up. Yes. So pasteurization जो है बेटा, this is also a technique which is used in dairy industries to preserve milk. ये भी एक टेक्निक है जो इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए. ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर टेक्निक इट वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट हुज नेम इज पास्चर, लुईस पास्चर. लुईस पास्चर एक हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टेक्निक बताई थी. इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं बेटा, वी हीट द मिल्क एट अ टेम्परेचर ऑफ 72 डिग्री सेल्सियस. Okay, in this process particularly, we heat the milk at a temperature of 72 degrees Celsius for 15 seconds. इसमें हम दूध को गर्म करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस तक और 15 सेकंड के लिए. एंड देन देयर इज सडन कूलिंग. फिर हम एकदम से इस मिल्क को कूल कर देते हैं. सो देयर इज फर्स्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हीटिंग होती है. हीटिंग के बाद एक सडन कूलिंग होती है. देयर इज अ सडन कूलिंग ऑफ द मिल्क. सो बिकॉज ऑफ दिस हीटिंग एंड सडन कूलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर किल्ड. And now this milk is packed and it is suitably kept and then it is sent to the market. So such a milk is called as pasteurized milk. क्या कहते हैं बेटा हम इस मिल्क को, हम ऐसे मिल्क को कहते हैं pasteurized milk. So pasteurized जो मिल्क होता है वो 72 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता है 15 सेकेंड्स के लिए, फिर उसकी कूलिंग की जाती है एंड देन इट इज पैक्ड. और इस टेक्निक को किसने बताया था हमें, लुईस पास्चर ने. ओके, अंडरस्टूड? Yes. Yes, everyone. Yes. Now there is another scientist whose name is Robert Koch. Okay. He basically explained the spread of infectious diseases. इन्होंने हमें diseases के बारे में बताया था. And his basic research was on tuberculosis. TB पर इनकी research concentrated थी. And in 1905 he was awarded a Nobel Prize. इन्हें Nobel Prize मिला था बेटा. So you always remember did you know concept. Okay. Now let's come to the second technique which is called as cooling.
देखिए हमने फर्स्ट टेक्निक की, व्हाट वाज द फर्स्ट टेक्निक? हीटिंग. सो हीटिंग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है. सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कूलिंग. देखिए हम देखते हैं सेवरल फूड आइटम्स लाइक लाइक द आटा दैट वी हैव इन हाउसेस. आटा है हमारा, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं. अब जरा बताइए गर्मी में हम इन्हें कहाँ रखते हैं बेटे? वेयर डू वी कीप ऑल दीज मटीरियल्स? यस, वी कीप देम इन द फ्रिज. इन सभी मटेरियल्स को हम फ्रिज में रखते हैं, isn't it? एंड फ्रिज हैज अ लोअर टेम्परेचर. ठीक है, इसका मतलब है अगर हम फूड को कूल करते हैं बेटा, सो दैट मिनिमाइजेस द चांसेस ऑफ स्पॉइलेज. तो अगर हम खाने को लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन है, वो स्लो हो जाती है. सो दे विल टेक अ लॉन्गर टाइम टू स्पॉइल द फूड. And then second is we can even keep the food items in the deep freezer like ice creams. Ice creams जो है बेटा वो हम deep freezer में रखते हैं. That is at a low temperature of -18 degrees Celsius, and that is why these food items they are prevented from spoilage for months. Okay. So keeping the food items in fridge at a low temperature or in deep freezer will slow down the growth of microbes. Microbes की growth को slow कर देता है. Let's come to the third technique, that is adding salt and sugar. हमने we must have observed in our houses that our mother or our grandparents generally they make adding salt and sugar. They add pickles. आपने बनाते हुए देखा होगा. So they add lot of salt into the pickles, isn't it? Salt add करते हैं या sugar add करते हैं. So जब हम sugar या salt को add करते हैं बेटा, so this reduces the moisture content of the food. Food के अंदर जो पानी मौजूद है उसको कम कर देता है, and that prevents the growth of microorganisms. ठीक है? Understood? Yes. And when we put lot of salt or sugar in the water, तो एक process होता है osmosis. इससे क्या होता है कि जब हम suppose करिए हमारे पास ये food item है, like here, okay, so we are keeping the food item here and we are sprinkling salt over it. So because of this what will happen? अगर इस food item के ऊपर microorganisms होंगे तो उनकी body में से भी water loss हो जाएगा, water will come out. ठीक है, पानी का loss हो जाएगा, right? अगर खाने के ऊपर फूड आइटम्स के ऊपर माइक्रोब्स मौजूद हैं, जर्म्स मौजूद हैं, और अगर हम उसके ऊपर कॉमन सॉल्ट डालते हैं तो कॉमन सॉल्ट डालने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से पानी बाहर आ जाएगा. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल आल्सो लूज वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज बिकॉज ऑफ एक्सेस सॉल्ट एंड दे विल आल्सो डाई. ठीक है, एंड दैट इज व्हाई हम पिकल्स बनाते वक्त या मीट बनाते वक्त या फिश या चिप्स के अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं. या ठीक है, जब हम जैम्स या जेलीज बनाते हैं, स्क्वैशेस बनाते हैं, देन वी ऐड शुगर इनटू इट. नेक्स्ट जो टेक्निक है बेटे हमारे पास, फोर्थ टेक्निक विच इज कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मीन्स टू रिमूव वाटर. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है टू रिमूव वाटर, पानी को रिमूव करना. ठीक है, क्योंकि पानी जो है, वाटर इज रिक्वायर्ड बाय द जर्म्स टू ग्रो. पानी चाहिए जर्म्स को ग्रो होने के लिए. तो अगर किसी फूड आइटम में पानी नहीं होगा, सो ऑब्वियसली जर्म्स विल नॉट बी एबल टू ग्रो ओवर इट एंड दे विल बी प्रिजर्व्ड. लाइक हम देखते हैं दालों में, दाल सूखी होती है ना बेटा, ड्राई होती है. पल्सेस, ड्राई फ्रूट्स, स्पाइसेस, दे ऑल आर ड्राइड, ओके, सो दैट दे रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट टेक्निक इज एडिंग ऑयल और विनेगर. कुछ फूड आइटम्स जो हैं बेटे उनके अंदर हम ऑयल या विनेगर को ऐड करते हैं जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आसानी से ग्रो ना हो सके. ओके, एंड सम ऑफ दीज एग्जांपल्स आर योर फिश, मीट, पिकल्स. आपने देखा है हमेशा पिकल्स जो है दे आर ऑलवेज डिप्ड इन ऑयल, राइट? देन वी कैन ऑल्सो यूज सम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स. In addition to our household remedies, कुछ केमिकल्स भी हम ऐड करते हैं लाइक सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फेट. ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं बेटा जो हमारे जैम्स को, सॉसेजेस को, केचप्स को फ्रेश रखते हैं
और इनके अंदर माइक्रोब्स की प्रेजेंस नहीं होने देते या उनको किल कर देते हैं. इफ देयर माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, दे किल दोज माइक्रोब्स and keep them safe for a longer period of time. The sixth technique that we have is canning and vacuum packing. Canning होता है, आपने देखा होगा कुछ फूड आइटम्स कैंस के अंदर आते हैं, प्रिजर्व होते हैं. कुछ फूड आइटम्स जो है वो उनके कांटेक्ट में एयर को रिमूव कर दिया जाता है, एयर को हम कांटेक्ट में नहीं आने देते. ठीक है, हाँ, वैक्यूम पैकिंग करते हैं. यस. एंड इन यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारे चिप्स के पैकेट्स होते हैं बेटा, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल भरी हुई होती है, बिकॉज दिस इज अ इनर्ट गैस और ये किसी भी फूड आइटम से रिएक्शन नहीं करती है. ये इनर्ट गैस है एंड इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी ऑफ द फूड आइटम्स. ओके, सो ये कुछ टेक्निक्स हैं हमारी. देयर आर अप्रॉक्सिमेटली 6 to 7 टेक्निक्स जो हमारे खाने को फ्रेश रखने में हमारी हेल्प करती हैं. Okay, everyone. I hope all the techniques are clear. If there is any doubt, you can ask me. I'll definitely share with you. Okay. So for today, we'll come to the homework. First of all, you will make notes of this topic. You will read the complete chapter, and you will also complete the question answers that I've shared with you. Right? And if there is any doubt, any query, you can share it with me on my number. Okay, dear students, bye for today. Bye everyone.